guys, what's up? This is Gigi Rahul from V4AI. So आज वीक 5 का 5.7 एक्टिविटी उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज कंपोजिट फंक्शंस में काफ़ी डाउट्स हैं बच्चों को एंड दे हैव रीच्ड आउट टू मी वाया व्हाट्सएप. So if you are also facing issues with 5.7, you can continue this video and understand how to solve the questions because it's not just about the answer. Many of the IIT Madras students have actually shared the answers, which is really commendable कि उन लोगों ने इतने effort मारा. Similarly, I being an IIT Madras student, I'm also sharing some of my knowledge with all of you, all my juniors. So I'm creating this video to by solving all the questions of activity 5.7. So in this video, we will be solving questions of activity 5.7. Okay, it's going to be in English, but yeah, I think if you don't even understand Hindi, but still you can just try to understand what I'm writing here on the board and maybe get an idea about how I'm solving the question. Okay, so without moving ahead and like discussing about the thing, I'd just like to request you guys, if you're liking my videos and if you're really preparing for IIT Madras, do support me by subscribing to this channel and sharing it in the video with other friends, other IIT Madras students. Okay, so do that. And I'm continuously creating the videos of IIT Madras, so you can follow my channel, check out the videos of activity 5.7, grade assignments. So I don't post the solutions before the deadline, I post the solutions after the deadline so that you can prepare well for your exams, right? So let's start the video with the first question. The first question is fx is equal to, if fx is equals to 10x minus 5 का whole square, right, plus 100x minus 25 minus 225, right? So this is the question. fx is itna, and if gx is equal to, gx is what? Gx is equal to under root of 2x plus 5, right? Under root of 2x plus 5. Now the question is then composite function, then composite function f of g of x and g of f of x कितना आएगा? ठीक है, that is the question. The question is you have to find out the value of f of g of x and g of f of x. ये दोनों चीजें हमें निकालनी है. अब ये कैसे निकालेंगे इसको देखना है. ठीक है, f of g of x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बार briefly discuss कर लेते हैं. So if you have been asked to find out the value of f of g of x, then क्या निकालना है इसका मतलब? इसका मतलब you have to find out the value of, अगर हम f के अंदर g of x को पुट करें तो क्या आएगा, मतलब पहले आप g of x को कैलकुलेट करो, फिर उसकी वैल्यू फंक्शन f में पुट करो. क्या करना है, पहले आप g of x को वैल्यू निकालो और फिर g of x को वैल्यू इस फंक्शन f में पुट कर दो. इस तरीके से आप निकालते हो. इसको क्या बोलते हैं, f of g of x, ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, इसका मतलब है पहले gx को कैलकुलेट करो देन पुट करो उसको fx में. तो निकालते हैं यार. यहाँ पे क्वेश्चन इज f of g of x. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, g of x. ठीक है, इससे पहले भी क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी इक्वेशन है, राइट? काफी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है. तो अब इसको आपको समझना है. कैसे समझना है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 10 ऐसे a माइनस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, प्लस 100x माइनस 225. तो 10x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 ऑफ x प्लस 100x माइनस 225. ठीक है, इस तरीके से एक्सपैंड कर लिया f ऑफ x को. मैं क्या कर रहा हूँ, ये f ऑफ x को एक्सपैंड कर रहा हूँ. अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर 10x स्क्वायर प्लस 250 माइनस 110 इंटू 10 विल बी माइनस 100x प्लस ये वाला 100x माइनस 225. सिंप्लीफाई करो भाई, प्लस माइनस कर लेते हैं. तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो दिस इज माइनस 100x, दिस इज प्लस 100x. ये दोनों कट जाएंगे, यस कट जाएंगे. अब क्या होगा, दिस विल बी 10x स्क्वायर राइट प्लस 250 माइनस 225 विल बी 25. तो आपका ये आंसर आ गया. दिस इज नथिंग बट f of x. f of x की वैल्यू कितनी आ गई, 10x स्क्वायर प्लस 25. ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. fx कितना है हमारा, 10x स्क्वायर प्लस 25. तो
तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपल बनाना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्वेश्चन को जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल बनाओ, ठीक है, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो, बिकॉज छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, राइट। ऑलवेज यूज दिस अप्रोच, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू यूज इट, ठीक है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज दिस अप्रोच। तो हमारे पास fx की वैल्यू ये आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट f ऑफ g ऑफ x। तो भाई f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो। g ऑफ x क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5। मतलब अब इस वैल्यू को मैं इसमें x की जगह पुट करूंगा, इस वैल्यू को मैं इस जगह पुट करूंगा। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, देखो जी, देखो कैसे करूंगा। मैं 10 लिखूंगा एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है मुझे, ये, तो अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 और यहाँ पे x स्क्वायर था, मैं स्क्वायर लगा दूंगा प्लस 25। कितना आया 10, ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो क्या मतलब हुआ, अंडर रूट से स्क्वायर क्या होगा, इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा, इसको अगर मैं स्क्वायर करूं, मतलब ये अंडर रूट है ना, देखो अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस विल बी नथिंग बट 2 की पावर 1/2 इनटू 2। तो क्या आता है आंसर, 2 आता है ना। अंडर रूट का होल स्क्वायर विल बी 2। तो इसी तरीके से अगर इसका स्क्वायर, इसके अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2x प्लस 5 प्लस 25। एक्सपैंड करो, 10 2 ज़ा 20, 20x प्लस 50 प्लस 25, आंसर विल बी 20x प्लस 75। और ये वाला ऑप्शन कितने में, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं दीज वैल्यूज, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ x कितना आ गया, इतना आ गया। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, राइट। तो हमारा f ऑफ g ऑफ x कितना आया, f ऑफ g ऑफ x आया हमारा, f ऑफ g ऑफ x आया इतना, है ना जी, ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x कैसे होगा बताओ। तो मुझे क्या करना है, इस fx को g लिखो और fx की वैल्यू कितनी है हमारी, fx की वैल्यू ये थी, मैंने लिख दिया 10x स्क्वायर प्लस 25। अब मुझे क्या करना है, ये जो है ना, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है। तो कैसे होगा, अंडर रूट ऑफ 2 और इसको पुट करना है 10x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। x की जगह क्या रख दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, इस x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस क्या था, प्लस 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 20x स्क्वायर प्लस 250, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 प्लस 5 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 20x स्क्वायर प्लस 75। ये कितना आ गया, g ऑफ f ऑफ x। तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है लास्ट ऑप्शन, वो यही है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो, समझो, एक एक स्टेप को सॉल्व करो, 2 बार कम से कम सॉल्व करो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी यू गाइस फॉरगेट, मतलब ऑल ऑफ अस, इवन वी ऑल फॉरगेट थिंग्स, जो नई चीजें हम पढ़ते हैं, तो उसको आपको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू रिपीट दैट क्वेश्चन, रिवाइज दैट क्वेश्चन आफ्टर मे बी 24 आवर्स एज वेल, ठीक है। ये प्रॉपर मतलब स्टडीज के बेसिस पे है कि 24 आवर्स के बाद आपको एक बार दोबारा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इजी भी है। लेट्स सी कितने बच्चों ने करा है, कितनों ने नहीं करा है, ठीक है। सो गाइस, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, सो प्लीज डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जस्ट स्प्रेड द वर्ड कि देयर इज अनदर सीनियर ऑफ योर्स जो कि वीडियो बना रहा है फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे कि तुम लोग थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओ। दैट्स ओनली मोटिव, right? And apart from this, I'll be creating, I'm not just a part of IIT Madras, I'm also starting my own V4AI as a startup right from the IIT Madras only. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं V4AI। इसका पर्पस क्या है, V for AI, मतलब V for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीपल लाइक यू, या जो बच्चे जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में ट्रांजिशन करने में हेल्प कर रहे हैं। So we are creating content, we are creating courses on those things. So you can follow our website as well. You can follow our YouTube channel, my tutorials.
to learn more about artificial intelligence, data science, because I have worked in the industry for 6.5 years with many brands. You can go and check my LinkedIn profile as well to get an idea. Would be really happy to get connected with you via LinkedIn as well and WhatsApp. My WhatsApp number is down there in the description and in the first comment. ठीक है, so we can get connected. Follow me on Insta. Let's get connected and let's say hi. Chit chat करेंगे. So just you can just ping me over these social media platforms. So second question says fx is equal to 3x plus 10, right? Then gx is equal to under root of x plus 11. ठीक है. Now what you have to find? You have to find out the find f of g of 5. ठीक है, समझो करना क्या है. वो चीज समझ आ गई तो क्वेश्चन बन जाएगा. सबसे पहले क्या कह रहे हैं? f of g of 5 मतलब क्या करना है? अंदर वाले वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या कहूंगा? पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? g of 5. तो g of 5 क्या आया भाई? g of 5 क्या आएगा वो कैलकुलेट करना है. तो g of 5 विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, इसके अंदर 5 पुट कर दो. 5 plus 11, this will be under root of 16 is equal to under root of 4. ठीक है, क्या है g of 5? under root of 4. अब इस g of 5 की जगह under root of 4 पुट कर दो, मतलब f of g of 5 करना था. तो g of 5 कितना आ गया? 4 आ गया, is equal to f of 4. ठीक है, तो आप फंक्शन के अंदर 4 पुट कर दो. आप 3 into 4 plus 10 कितना आ गया आपका? 22. ठीक है, 12 plus 10 will be 22. तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था. सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव टू फाइंड व्हाट? g ऑफ f ऑफ 5. इसमें क्या करना होगा हमें? पहले हम f ऑफ 5 कैलकुलेट कर लेते हैं. तो f ऑफ 5 कितना हो जाएगा भाई? इसके अंदर f ऑफ 5 में f ऑफ x क्या था हमारा? 3x plus 10, राइट? तो इसमें क्या कर देंगे? 3 into 5 plus 10 कितना है? 15 plus 10 will be equal to 25. ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? नाउ आई हैव टू कैलकुलेट g ऑफ f ऑफ 5. तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आई? 25. तो g ऑफ 25 कितना हो जाएगा आपका? इसके अंदर हमें 25 रख देना है. इसके अंदर हमें क्या रख देना है? 25. तो बताओ कितना आएगा आंसर? जस्ट ट्राई टू चेक क्या आंसर आएगा. क्या आएगा बताओ? तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25 इसमें रख देंगे. 25 प्लस 11 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 36. तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है? दिस विल बी नथिंग बट 6. और ये क्या है? आंसर है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था. ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शन. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग है. ठीक है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. सो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने में ध्यान से करो. अगर तुम खुद ट्राई करना चाहते हो तो डू पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एज वेल. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग fx एंड gx. fx एंड gx आपको गिवन है. ठीक है, फॉलोज क्या फॉलो करते हैं? f ऑफ g ऑफ x जो है इज इक्वल टू होगा g ऑफ f ऑफ x. मतलब ये दोनों जो होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे. f ऑफ g ऑफ x विल बी इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, राइट? तो वो हमें चेक करना है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 सेज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x. ठीक है, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 10x प्लस 3. सोचो इसको कैसे करेंगे. जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें क्या निकालना है? हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि क्या ये जो कंडीशन है ये सही है यहाँ पे, ये चेक करनी है. तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए यू हैव टू फाइंड आउट f ऑफ g ऑफ x, है ना? तो कैसे निकलेगा? f ऑफ g ऑफ x को रख दो अंदर 10x प्लस 3, राइट? 10x प्लस 3. ऐसे क्वेश्चंस की मैंने थ्योरी में भी वीडियो बनाई है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल, राइट? मेरे चैनल पे जाके यू कैन चेक द IIT मद्रास मैथ्स प्लेलिस्ट, मैथ्स 1 प्लेलिस्ट, उसमें तुम्हें मिल जाएंगी वीडियोस. ठीक है, तो पूरी मेरा टारगेट यही है कि मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूं जिसको यू गाइस कैन यूज एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट करेगी विद द IIT मद्रास करिकुलम.
जिससे कि तुम लोगों को हेल्प मिल जाए कि हाँ यार जो भी चीज़ें हैं अगर यहाँ पे नहीं समझ आई तो राहुल की वीडियो देख सकते हैं, V4AI की वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। सो दैट्स माई टारगेट, let's see how it goes, and if you have made some notes, do share it with me. I would be very happy to share it on my website as a free, I mean, content, and will give you credit as well कि ये इस बंदे ने create करा है content. This will really help our juniors, my juniors, जैसे तुम लोगों को help मिल रही है वैसे ही तुम्हारे juniors को भी help मिलेगी, ठीक है। So अपने notes वगैरह share कर दिया करो मुझसे, जिससे कि हम लोग अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर पाएं और बच्चों को भी हेल्प मिले, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे इवन 120-150 स्टूडेंट्स हैं क्वालिफायर में भी, तो इतने बच्चे हैं जो कि नोट्स को पढ़ते हैं उन नोट्स को, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो, जो फ्री नोट्स हम डालते हैं उनकी मैं बता रहा हूँ, फ्री नोट्स वाले जो बच्चे हैं जिनको फ्री में हम सब सर्कुलेट करते हैं, तो 100-150 से भी ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने यूज़ करे क्वालिफायर के एग्जाम में, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू हमने रख दी। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को एफ एक्स में पुट कर देंगे, तो एफ एक्स क्या था 2 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है 10x प्लस 3, यहाँ पे क्या आया 20x प्लस 6, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ x, कैसे निकलेगा, g के अंदर fx की वैल्यू रख दो, fx क्या है 2x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो 10 ऑफ 2x प्लस 3, तो कितना हो गया 20x प्लस 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बट अभी ये देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, हमें चेक करना था कि चेक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कैसा है यहाँ पे, क्या 20x प्लस 6 जो है इक्वल है 20x प्लस 3 के, नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन विल बी फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से ही करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी, ऑप्शन नंबर 2 इज इतना, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 6 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, gx कितना है 4x प्लस 3, राइट। तो अभी आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ ऑफ 4x प्लस 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको पुट कर देंगे, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो दिस विल बी नथिंग बट 7 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 6, आंसर विल बी 7 4 द 28, मल्टीप्लाई करो इसको अंदर 28x प्लस 21 प्लस 6, तो कितना हो गया 28x प्लस 27, राइट, 28x प्लस 27। अगला इज g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। g ऑफ f ऑफ x कैसे निकलेगा, मतलब g के अंदर fx की वैल्यू पुट कर दो, दिस वैल्यू, तो दिस विल बी 7x प्लस 6। अब इसमें इस x के अंदर g के अंदर क्या रखना है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 7x प्लस 6 प्लस 3। ध्यान से स्लो करके देख लेना अगर नहीं क्लियर हो रहा है। क्या करा मैंने, इस वैल्यू को इस g के अंदर पुट करूंगा, क्योंकि g ऑफ x है ना, तो अब इस तरीके से हो जाएगा 4 7 28x प्लस 4 6 24 प्लस 3, ये कितना है 28x प्लस 27। तो मुझे दिख रहा है क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये जो इक्वेशन है और ये दोनों सेम आ गए, तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि क्या ये दोनों सेम है, यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे। आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन इज वेरी इजी, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में कैसे हो रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, एफ के अंदर क्या रखना है, एक्स रख दो। अब इसके अंदर क्या रख देंगे, इस वैल्यू को यहाँ फीड कर देंगे, तो इट विल बी नथिंग बट ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, है ना। ऐसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, तो यहाँ पे क्या रखेंगे अंदर, इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ ई टू द पावर एक्स, है ना। अब इस ई टू द पावर एक्स को कहाँ पुट करना है, इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा ये ई टू द पावर एक्स, देयरफॉर
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस करने थे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड फिगर आउट कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज एफ एक्स इज इक्वल टू 4e⁻x, 4e⁻x, gx इज इक्वल टू 4x, gx इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ g ऑफ x। कितना आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x, इस फंक्शन के अंदर g ऑफ x पुट कर दो, मतलब 4x पुट कर दो। अब इस 4x को कहाँ पुट करना है, इस x में, क्योंकि वे f ऑफ 4x है। तो क्या हो जाएगा 4e⁻, क्या रखेंगे, x की जगह 4x रखेंगे, तो हमारा ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से इसको कुछ फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते, कितना हो गया 4e⁻4x। अब अगला क्या है, g ऑफ f ऑफ x, ये कितना हो जाएगा, मतलब g के अंदर क्या रखना है 4e⁻x, है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी। अब क्या हुआ इसका मतलब, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस जगह, तो ये हो जाएगा 4 into 4e⁻x, दिस विल बी नथिंग बट 16e⁻x। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। तो इसमें दो ऑप्शन सही हुए, सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शंस, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, तो जस्ट स्टिक विद मी, इंटरेस्टिंग है, तो गलत नहीं करना बिल्कुल भी, ध्यान से समझो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 into अंडर रूट ऑफ x प्लस 9, 2 into अंडर रूट ऑफ x प्लस 9, gx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, 8x स्क्वायर, hx इज इक्वल टू 5x प्लस 7। ये तीन फंक्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। अभी हमें क्या बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ 0 जो है वो क्या होगा, क्या वो लेस देन जी ऑफ एफ ऑफ 0 होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 0 होगा, ठीक है, ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से, क्योंकि और भी ऑप्शंस में ये सारी जी ऑफ 0 एफ ऑफ 0 निकालना है, तो साइड मैंने इसको सॉल्व कर देना है। तो जी ऑफ 0 क्या आएगा, मतलब जी के अंदर 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 8 into 0 का स्क्वायर, दिस विल बी नथिंग बट 0, ठीक है। इसी तरीके से एफ ऑफ 0 क्या आएगा, x के लिए 0 रख दो, तो 2 into 0 plus 9, दिस विल बी नथिंग बट 2 into 3, तो 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, h ऑफ, एक और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें h ऑफ 0 ही पूछे, तो वो भी निकाल देते हैं मैथमेटिक्स। तो h ऑफ 0 क्या हो जाएगा 5 into 0 plus 7, दिस विल बी नथिंग बट 7, ठीक है। तो ये ऐसे करके निकल जाएगा। अभी जो आगे बढ़ेगी बात, आगे क्या है, ये चीज निकालनी है। तो इसमें क्या हुआ, f ऑफ g ऑफ 0 निकालना है। तो ये कितना हो गया हमारा, दिस विल बी नथिंग बट g ऑफ 0 कितना आया, 0 आया, तो f ऑफ 0 आ जाएगा, है ना। g ऑफ 0 कितना है आपका, 0 आया, तो f ऑफ 0 क्या आ रहा है हमारा, f ऑफ 0 इज 6, तो यहाँ पे आ गया LHS में 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा g ऑफ f ऑफ 0, तो g ऑफ f ऑफ 0 कितना है आपका, बताओ मुझे, g ऑफ f ऑफ 0 इज 6, है ना, तो हमें 6 पुट कर देंगे इसकी जगह, इसके लिए 6 पुट कर देंगे। तो मुझे क्या निकालना है, g ऑफ 6, तो g ऑफ 6 कितना आएगा भाई, g ऑफ 6 विल बी 8 into 6 का स्क्वायर, दिस विल बी नथिंग बट, सॉरी, ये कितना आ जाएगा 8 into 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 8 into 36, ये तो काफी बड़ी वैल्यू आ गई, है कि नहीं आ गई, है या नहीं आई बताओ, है ना। तो क्या हुआ ये, दिस इज करेक्ट,
तो मतलब ये जो है ये इससे छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो गया। ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन सेज, तो सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वो क्या कह रहा है कि h ऑफ f ऑफ 0 लेस देन ग्रेटर देन f ऑफ h ऑफ 0, ग्रेटर देन f ऑफ h ऑफ 0। तो क्या करना है, देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, h ऑफ f ऑफ 0। तो क्या हुआ है, h ऑफ f ऑफ 0 कितना आया था हमारे यहाँ पे, दिस वाज 6, तो हम क्या लिखेंगे 6। ठीक है, अब क्या करना है, h ऑफ 6 निकालना है। तो h ऑफ 6 कितना हो जाएगा, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर 6 पुट कर दो, तो 5 इंटू 6 प्लस 7 कितना हो गया, 37 आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, f ऑफ h ऑफ 0, तो h ऑफ 0 कितना है 7, तो f ऑफ 7 हो गया, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 9 विच विल बी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16, तो क्या हो गया 2 इंटू 4 जो कि हो गया 8। तो यहाँ पे था 37, यहाँ पे आया 8। बताओ सही है गलत है, बताओ मुझे, सही है ना। सो दिस विल बी ट्रू, सेकंड ऑप्शन भी आपका ट्रू हो गया। फर्स्ट सेकंड दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए। ठीक है, अभी थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। थर्ड ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड ऑप्शन सेज f ऑफ g ऑफ x जो है वो लेस देन है g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। कैसे, v बनाया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन काट दी। फॉर ऑल मतलब सारी वैल्यूज के लिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लूं तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, लेट्स ट्राई चेकिंग दिस कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, f ऑफ जी एक्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा, f ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे होगा भाई, f ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 8x²। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ये चेक करना है ना, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, f ऑफ 8x² तो क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8x² प्लस 9, आगे 8x² प्लस 9। ठीक है, इतना ही आएगा, इसके बाद कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अगला जो है हमें क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x मतलब g के अंदर fx की वैल्यू पुट करो। fx इज नथिंग बट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 9, अंडर रूट ऑफ x प्लस 9। तो g की वैल्यू क्या है 8 इंटू इसका स्क्वायर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी नथिंग बट 8 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 4x प्लस 9, तो दिस विल बी 32x प्लस 9, है ना। 32 इंटू x प्लस 9 टू द 18, 9 3 द 27, 288। ठीक है, ये कितना हो गया 32x प्लस इतना, है ना। या इसको यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या हमेशा जो ये चीज़ है, क्या हमेशा 2x² 8x² प्लस 9 जो है ये हमेशा 32x प्लस 9 से क्या होगी, क्या ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे हमेशा छोटी होगी, हमेशा। भाई दिख रहा है मुझे यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो दिख रहा है मुझे कि ये बड़ी है और ये बड़ा है, ये छोटा है ना। तो मैं अगर इसमें सॉरी यहाँ पे क्या था x प्लस 9 है, हाँ सपोज मैं एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 10। तो मैंने क्या करा 2 इंटू 8 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 9 कितना हो गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 800 प्लस 9, तो 2 इंटू 809 स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे ये किसका होगा स्क्वायर रूट, भाई 30 का स्क्वायर रूट क्या, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, तो ये 30 से थोड़ा छोटा होगा, इसको तुम निकाल भी सकते हो। अब यहाँ पे अगर रखूँ मैं 32 इंटू एक्स की वैल्यू 10 प्लस 9, तो दिस विल बी 32 इंटू 19। ये कितना आएगा, ये आएगा इवन 60 से भी छोटा, ठीक है 60 से भी कम, बट ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो डेफिनेटली ये बड़ी है। बट अगर वहीं पे मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, अब मैं एक नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, क्योंकि कंडीशन क्या है x बिलोंग्स टू एनी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, राइट। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो अब मुझे क्या करना है, एक नेगेटिव वैल्यू लेके चलता हूँ।
तो लेट से मैं यूज कर लेता हूँ नेगेटिव वैल्यू एज, यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 लिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू -10 ले लिया, कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, -10 -20 -50 जो भी है, तो मैंने -10 ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8x² प्लस 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 32x प्लस 9। देखते हैं यहाँ पे -10 रखा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 -10 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा सेम 8 इंटू 100, क्योंकि -10 का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, प्लस 9, तो ये कितना आ गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 809, ठीक है, ये इतना आ गया, सेम वही चीज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आएगा 32 इंटू माइनस ऑफ 10 प्लस 9, 32 इंटू माइनस ऑफ 10 प्लस 9 कितना हो गया 32 इंटू -1, दिस विल बी नथिंग बट -32। तो क्या ये इससे छोटा है? क्या हम ये लगा सकते हैं लेस देन का साइन यहाँ पे? नहीं ना, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, तो ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं होगी। सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, क्योंकि जैसे ही मैंने नेगेटिव वैल्यू ली एज पर द कंडीशन जो उन्होंने बोला है x की रेंज -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक है, तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, कोई भी बड़ी वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कंडीशन चेंज हो रही है ना, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। तो दिस विल बी फॉल्स, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो जो कर रहे हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर लास्ट के दो ऑप्शन और डिस्कस करेंगे। हमने 3 ऑप्शन डिस्कस कर लिए। सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो इसका है, ऑप्शन नंबर 4। क्या है ऑप्शन नंबर 4? वो कहता है कि f ऑफ h ऑफ x जो है, ठीक है, दिस शुड बी लेस देन h ऑफ f ऑफ x, h ऑफ f ऑफ x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, राइट। तो उस केस में क्या होगा ये हमें बताना है ना। उस केस में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे f ऑफ h ऑफ x ये निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, इसके अंदर मैंने f लिखा और hx की वैल्यू डाल दी 5x प्लस 7, है ना। तो आप इस 5x प्लस 7 को इसके अंदर डाल देंगे f के अंदर, राइट। कैसे होगा, अंडर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x की जगह रखना है 5x प्लस 7 प्लस 9, कितना हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 9 7 16, तो हमारा ये आ गया, है ना। अभी h ऑफ f ऑफ x निकालते हैं, तो ये हमने निकाल लिया। अब h ऑफ f ऑफ x निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, h ऑफ f ऑफ x इज 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 9, राइट। तो इसको किसके अंदर पुट करना है, इसके अंदर, तो दिस विल बी नथिंग बट 5 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 7, दिस विल बी 10 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 7, है ना, 10 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 7। तो चेक करो कि क्या ये जो चीज़ है ये कंडीशन सही कह रही है। ये कह रहा था कि 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 16 शुड बी लेस देन 10 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 7, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेके देखो तो क्या हो जाएगा। अगर मैं 10 लेके देखता हूँ x इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 16, है ना। तो ये भी क्या है, ये छोटी रहेगी हमेशा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ प्लस 7 भी हो रहा है। फिर भी देख लेते हैं 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 56, इसे कैलकुलेट करना कितना है, और चेक करो इससे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस 9, तो दिस विल बी 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 19। तो दिख ही रहा है यार, ये जो चीज़ है यहाँ पे तो इतना आया, ठीक है, प्लस 7 भी हो रहा है, ठीक है। तो आप एक बार चेक करो दोनों में क्या होगा, तो ये इससे छोटी होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट है कि ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ट्रू हो रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ना यहाँ पे रेंज का इशू है, हमेशा हमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज देनी है, राइट। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन देखो भाई, लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि h ऑफ g ऑफ 1 है ना इज ग्रेटर देन g ऑफ h ऑफ 1 इज ग्रेटर देन g ऑफ h ऑफ 1। कितना हो जाएगा बताओ मुझे, क्या कह रहे हैं, h ऑफ g ऑफ 1 इज ग्रेटर देन h ऑफ g ऑफ h ऑफ 1 है ना। तो कैसे होगा ये, कैसे होगा बताओ मुझे, मुझे क्या करना है, h ऑफ g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 निकाल लेता हूँ सबसे पहले। g ऑफ 1 क्या आएगा भाई, इसके अंदर 8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आ गया 8 है ना। अब h ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, h ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, तो 5 इंटू 1 प्लस 7, तो कितना हो गया 12 है ना। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, तो दिस विल बी h ऑफ g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो h ऑफ 8 चेक करो, h ऑफ 8 क्या आया, h ऑफ 8 विल बी इसके अंदर 8 पुट कर दो, तो 5 इंटू 8 प्लस 7, 5 इंटू 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 47 है ना। इसी तरीके से इसको चेक करते हैं, h ऑफ 1 क्या है आपका, h ऑफ 1 इज 12 और g क्या है, g को एज इट इज लिख दो, तो g कितना है आपका 8 इंटू 12 का स्क्वायर है ना, तो 8x स्क्वायर है ना, तो 8 इंटू 12 का स्क्वायर, 8 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई 8 इंटू 144, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, ये जो कंडीशन है तो गलत हो गई है ना। सो दिस ड्यू टू दिस रीजन ये जो लास्ट ऑप्शन है ये फॉल्स हो जाएगा, दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, तो हमने आज 5.7 के कंपोजिट फंक्शन के सारे क्वेश्चंस, एक्टिविटी क्वेश्चंस कर लिए हैं इन डिटेल। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू, डू लेट मी नो समझ आए क्वेश्चंस, नहीं आए, कहाँ पे डाउट है, पहले क्या कंडीशन थी बिफोर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अभी क्या स्टेट है तुम लोगों की, आर यू गाइस एबल टू गेट इट और नॉट। बट आगे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस को दोबारा एक बार वीडियो बंद करके प्रैक्टिस करना, दिक्कत है तो दोबारा वीडियो जाके देखना, अदरवाइज मत वीडियो देखना। ठीक है, मेंटल मसल्स बिल्डअप करने का तरीका यही है, मैथ्स के अंदर यू हैव टू बिल्ड योर लॉजिक्स, बट ऐसा नहीं है कि किताब बंद करके होंगे, यू हैव टू गेट इंस्पायर्ड, यू हैव टू लर्न फ्रॉम समवन, देन ओनली थोड़ा सा दिमाग चलने लगेगा। दिमाग चलने लगा तो उसमें तेल भरो, पेट्रोल भरो और गाड़ी को तेज चलाओ, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो जस्ट कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, स्टिक विद इट, यू विल बी एबल टू नेल इट। आई रियली बिलीव इन ऑल ऑफ यू गाइज। मिलते हैं फिर, पैराडॉक्स में मिलेंगे या दिल्ली में अगर हो तो वी कैन कैच अप सम टाइम। आई प्लान मीटअप्स एज वेल, तो हम लोग अब भी मिल सकते हैं। ठीक है, फोड़ देंगे, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बजा दो। IIT मद्रास में स्कोर लाना है ऑसम वाला। मिलते हैं फिर, ओके देन, ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस।